So we were talking about food analysis. So we were talking about the food analysis and today we will talk about the food preservation. ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में फूड प्रेजर्वेशन क्या होता है. फूड प्रेजर्वेटिव्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस लेक्चर में और उसी डिस्कशन को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और फूड प्रेजर्वेटिव्स और फूड प्रेजर्वेशन के बारे में समझेंगे आज. So as far as the general definition is concerned, you know this, the process of treating and handling food to stop or slow down the spoilage, loss of quality, edibility or nutritional value and thus permits longer food storage. तो बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन करते क्यों हैं? इट स्लोज डाउन द स्पॉइलेज. कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देता है. जो फूड जिससे ख़राब हो रहा है, जो माइक्रोब्स फूड को ख़राब कर रहे थे उनको किल किया इसने, उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन किया. इट प्रिवेंट लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ द फूड, उसकी एडिबिलिटी को, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंटैक्ट रखता है. सो दैट इज़ वाई वी प्रैक्टिस फूड प्रिजर्वेशन. Preservation usually involve preventing the growth of bacteria, yeast, fungus and other microorganisms which are responsible for food spoilage. It also would prevent or retard the oxidation of fats and the process is called rancidification. कई बार इस पर नोट भी लिखने को आता है, व्हाट इज़ rancidification. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से क्या होगा? स्पॉइलेज होगी. तो अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देंगे तो उसको हम काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं या यूजेबल फॉर्म में रख सकते हैं फूड को स्टोर करके. So with this there are advantages, there are also some disadvantages. So first of all let's we talk about the advantages. The food preservation prevent the food from becoming spoiled by the action of enzymes and microorganisms. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. It increase the shelf life of food. obvious सी बात है, अगर जल्दी खाना ख़राब नहीं हो रहा है इसका मतलब वो काफ़ी टाइम तक एक हेल्दी कंडीशन में रह सकता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं. It maintain the natural characteristics of food like nutritional value, texture and flavor of the food. It increase the availability of out of season food stuffs. अब आपने देखा हुआ है कि कई बार जैसे मैंगो की बात कर लेते हैं तो मैंगो जो फ्रूट है वो आप देखते हैं उसका साल में 2-3 महीने का सीज़न होता है, मैंगो का जो सीज़न होता है, बट जूसेस की फॉर्म में आप उसको थ्रू आउट ईयर एंजॉय कर सकते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ दोज फूड प्रिजर्वेटिव्स. द प्रिजर्व्ड फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी. So preservation increases the availability of various foodstuffs even at distant places and remote places. Therefore, the main function of preservation is to delay the spoilage of food and to prevent any changes in the natural characteristics of food like its taste, appearance and nutritive value. So now we have understood what is food preservation. Now moving ahead, let's we discuss what are food preservatives and what are the different types of general food preservatives which are used in day-to-day life. So as far as the food preservatives are concerned, these are the substances which are added into the food to inhibit, retard or arrest the process of fermentation, acidification and decomposition. अब ये कैसे होता है? By slowing down the growth of microorganisms. They have been classified as class 1 preservatives and class 2 preservatives. And class 1 preservatives are called natural preservatives. This is important here. And in class 2 we have summed up the chemical preservatives. तो ये natural preservatives हैं और ये chemical preservatives हैं. तो natural वालों को हम कहते हैं class 1 preservative और जो chemical preservatives होते हैं उनको कहते हैं class 2 preservatives. So in the natural category, पहले हम one by one discussion start करेंगे. Natural category से शुरू कर लेते हैं. Natural preservatives के example है like common salt, sugar, glucose, spices, vinegar, honey, etc. etc. तो आप देख रहे हैं कि ये सारे सब्सटेंसेस नेचुरल ओरिजिन के, दैट इज़ वाई दे हैव बीन कैटेगराइज्ड और दे हैव बीन समड अप अंडर द कैटेगरी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स. देन देयर इज इंपॉर्टेंट लाइन रिटन हियर, एडिशन ऑफ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स इन फूड इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड. मतलब इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखा गया है क्योंकि वो नेचुरल ओरिजिन के तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तो इसके ऊपर हम किसी भी अमाउंट में इसको यूज़ कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड देर आर केमिकल प्रिजर्वेटिव विच हैव बीन कैटेगराइज्ड और विच हैव बीन समड अप अंडर क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स. द एग्जांपल्स इंक्लूड बेंजोइक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स लाइक बेंजोएट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, सॉर्बिक एसिड, सॉर्बेट्स, प्रोपियोनेट्स, सोडियम डाइएसिटेट, BHA butylated hydroxyl anisole and BHT butylated hydroxytoluene and then there is TBHQ टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीक्विनोन. तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या है, केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनका यूज़ किसके लिए होता है? एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स ये यूज़ होते हैं.
तो इनको हमने क्लास 2 कैटेगरी में रखा है क्योंकि केमिकल नेचर के हैं ये। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूज़ ऑफ डीज, यानी कि जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल रहता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ का कि इसको किस फॉर्म में किस अमाउंट तक यूज़ करना है। जनरल प्रिंसिपल इज़ एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में हम सिर्फ एक ही क्लास 2 फूड प्रिजर्वेटिव को यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 7-8 नोटेड है, एट ए टाइम इनमें से एक ही प्रेजेंट होना चाहिए किसी फूड की प्रिजर्वेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, द नेचुरल एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज एंटी माइक्रोबियल्स। अब आपको पता है कि एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, विच इनहिबिट और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सल्फर एग्जाम्पल इंक्लूड दिस सल्फर डाइऑक्साइड, इट प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ फ्रूट, वाइन्स एंड बियर। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल और भी आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। माई एम इज़ टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस जनरल डेफिनेशन व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल्स। देन देर आर एंटीऑक्सीडेंट्स, अब नाम से पता चल रहा है, विच विल प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दे आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें जो कैटेगरी में एग्जांपल आते हैं ये BHT, BHA जो हमने लास्ट में पढ़े थे, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटी एंजाइमेटिक, अब एंटी एंजाइमेटिक मतलब जो एंजाइम के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी कि कुछ एंजाइम्स होंगे जो फूड को फटाफट से राइपनिंग कर रहे होंगे उसकी और उसको स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो स्लो डाउन करेंगे उन एंजाइम्स को ताकि वो जो रिएक्शन है राइपनिंग वाली वो स्लो डाउन हो जाए। इट इनहिबिट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी सच एज राइपनिंग ऑफ फूड। आपको पता है कि अगर फ्रूट है कोई जल्दी पक जाएगा तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे उसके अगर हम राइपनिंग को स्लो डाउन कर देते हैं तो हम उसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। For example, citric acid and ascorbic acid stop the activity of enzyme phenolase, which causes brown coloration on the exposed surface of potato or the apple. तो ये citric acid, ascorbic acid को हम एज ए एंटी एंजाइमेटिक प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द होल लिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स and the category in which they fall, in the types of foodstuffs where they are used, and the maximum permissible limit. So you are seeing that benzoates are permissible up to a limit of 200 ppm. Then these antioxidants like BHA etc. they are limited to very low limit of 50 ppm. तो ये डिपेंड करेगा कि कितना हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे उनके हो सकते हैं, उस हिसाब से उनकी हाईएस्ट लिमिट फूड में कितनी होनी चाहिए उसको सेट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि BHA वगैरह के केस में लिमिट काफ़ी लो रखी गई है, 50 ppm है, और बेंजोएट्स वगैरह के केस में ये लिमिट जो है 200 ppm के आसपास।